بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے اور ایڈوانس لیول کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شروعات کی جو چیزیں ہوں گی وہ کور تو ہوں گی، لیکن بہت جلدی ہم کور کر لیں گے اس کو، اور اسی لیے ہم زیادہ اس پہ وقت نہیں لیں گے، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر آگے سے گفتگو کریں گے۔ کہیں بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ کو فوراً پوچھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان، جو کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو پہلے جاننا ہوتا ہے، اور دنیا کے تقریباً سبھی زبان میں وہ چیز مشترک ہے۔ جیسے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور زمان و مکان ہے۔ زمانہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس جسے کہتے ہیں، مضارع ہے جسے استقبال اور حاضر کہتے ہیں، اور پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، یہ تمام زبان میں ہوتی ہیں، اور سب زبان کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ اس زمانے کی چیز کو کس طرح سے، کس انداز سے ہم ادا کریں گے۔ تو یہ چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ کس زبان میں کس طرح بولا جا رہا ہے اور اس کو کیسے اسٹرکچر کو کیچ کریں، یہ دو چیزیں اگر آ جائیں تو زبان سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور انسانی دماغ اسی چیز کو بہت دیر سے کور کر پاتا ہے۔ مفردات اور کلمات تو آدمی اگر یاد کر لیتا ہے، لیکن جو اسٹرکچر ہوتا ہے، مثلا انگلش میں بولے تو پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ساری چیزیں آتی ہیں۔ دوسری زبان میں دونوں طریقے سے آ سکتے ہیں، کہ تقدیم و تاخیر کا جو نحو کے اندر ہوتا ہے اسٹرکچر، وہ چیز انسانی دماغ بہت دیر سے کور کرتا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو نیٹو اسپیکر نہیں ہے وہ ہے کہ ان قواعد کو سیکھ کے اس کا اجرا کیا جائے، پریکٹس کی جائے، یا پھر آپ اسی ماحول میں ڈھل جائیں، سعودی عرب چلے جائیں یا عرب کنٹری میں جا کر کے بولنا شروع کر دیں تو بولنی آ جاتی ہے، لیکن وہاں بھی لکھنے پڑھنے والی زبان کے لیے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو ہم یہاں پہ کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، انواع الحرکات العلامات الاصلیہ کے نام سے ہے۔ حرکات کو آپ جانتے ہیں، زیادہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بگنی لیول پر بتائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سر الحرکات فی اللغت ہاں جی، کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی؟ یہ سر کورس کا ابھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے نا سر؟ نہیں، یہ پہلی کلاس ہماری شروع ہو گئی، انٹروڈکٹری کلاس ہو چکی ہے۔ نہیں، یہ ابھی انٹروڈیوس ہی کرا رہے ہیں نا سر کورس کا ابھی؟ ابھی جو پڑھانا ہے اس کا انٹروڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، وہی پوچھ رہا ہوں سر۔ ہاں، یعنی باقاعدہ سبق ہی ہے یہ، یوں سمجھیے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے سر۔ آپ انٹروڈکٹری والے میں شاید نہیں تھے، چلیں۔ انواع الحرکات، حرکات اور اعراب کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ جو حرکت کلمات کے اوپر ہوتی ہیں اسے حرکت کہتے ہیں، اور اعراب وہ کلمے کے اخیر میں ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ الحرکات فی اللغت العربیۃ ہی علامات التی توضع علی الحروف، یہ بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ایک مہینے کے بعد یا تقریباً 15 دنوں کے بعد آپ سے پڑھواؤں گا، جو بھی پڑھے گا اسی کا فائدہ ہوگا۔ کہ حرکات عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ یہ علامات ہیں، نشانات ہیں، جو کہاں رکھے جاتے ہیں؟ سمبل ہیں جو حروف پر رکھے جاتے ہیں، اور ان حروف سے مل کر کے ایک پورا کلمہ بنتا ہے، اور کلمہ سے کلام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تدل علی کیفیت نطقها، اور دلالت کرتا ہے کہ اس کو کیسے بولا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر۔ جیسے کہ اگر خرجہ ہے تو جو اس پہ حرکت ہے زبر کی، اس نے بتایا کہ خرجہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یخرجو ہے تو جو پیش آیا را پہ اس نے یخرجو بنا دیا، جو جزم آیا یخ بنا دیا۔ یخرجو پڑھیں گے، یخرجو نہیں پڑھیں گے، یہ مطلب ہے تدل علی کیفیت نطقها، ان کلمات کو کیسے بولا جائے، یہ اس پہ دلالت کرتے ہیں یہ حروف۔ وَلَهَا أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي الْمَعْنَى، اور معنی کی ادائیگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، رول ہوتا ہے۔ تنقسم الحرکات الى الضمہ الفتحہ الکسرہ، حرکات کتنی ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ ہے۔ پڑھتے چلا جا رہا ہوں، بہت آسان چیز ہے لیکن یاد ہونی چاہیے، اس لیے یہ ہم اس کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ علامت الرفع الاصلیہ ضمہ ہوتا ہے، فتحہ علامت النصب اصلیہ ہوتا ہے، علامت الجر اصلیہ ہوتا ہے، وہناک علامہ اخرى وہی سکون، سکون بھی ایک علامت ہے، جزم جسے کہتے ہیں، التي تشیر الی عدم وجود حرکہ، یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی حرکت نہیں، ساکن پڑھا جائے گا، تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ حرکات اس پہ آتے ہیں، اور جو اعراب ہوتا ہے وہ کلمے کے اخیر میں آتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر کتنے اعراب ہیں؟ جزم کو بعض لوگ نہیں مانتے ہیں، جزم کو چھوڑ دے تو کتنے؟ تین ہی ہیں،
रफा नसब और जर। जज्म भी एराब में आता है लेकिन हरकत में तो सुकून हो जाएगा वो। अनवाउल एराब, अल एराब हुआ तगयीर अवाखिर कलीमा, ये ज़रूरी है, जो बीच में आते हैं कलीमे के उसे एराब नहीं कहा जाएगा, हरकत अलबत्ता कहा जाएगा। तो अवाखिरुल कलीमा लिख्तिलाफी अल अवामिल अद्दाखिलती अलैहा लफ्ज़न औ तक़दीरन व हालातुहु अर्बअतुन, अर्बउन व हालातु अर्बा, व हालात से अर्बउन हो जाएगा, ठीक है। किसे कहते हैं एराब? तारीफ आपको याद होनी चाहिए कि कलीमे के आखिर का बदल जाना। क्यों बदलता है कलमे का आखिर? इख्तिलाफिल अवामिल अद्दाखिलत अलैहा, उन अवामिल के बदलने से जो उस पे दाखिल हैं, अवामिल जो अमल करते हैं। मसलन जा जैदुन, तो जैदिन पर जो एराब आया है वो क्यों आया है? जा फेल है उसका फाइल होने की वजह से, ये हुआ अवामिल अद्दाखिला, उस पे आमिल कौन सा दाखिल हुआ है? जा फेल का। इसी तरह रअयतु जैदन कहेंगे तो जैदन पे जो एराब आया है वह रअयतु फेल बफाइल हो गया, उसके मफऊल होने की वजह से वो मंसूब हो गया है, ये मतलब है। तो ये जो सारा जो एराब जाहिर हो रहा है वह कैसा हो रहा है? लफ्जन हो रहा है, ठीक है। औ जी जी। तकदीरन, जैसे जा मूसा रईत मूसा मररत बि मूसा, जो इसके अंदर जो एराब होता है वो तकदीरी होता है, पोशीदा होता है। चार हालतें हैं, रफा नसब जर और जज्म, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, आसान है। आगे चलें। अल मुरक्कबात अनवाउहा व इराबुहा, ये बहुत अहम बहस है, छोटी है, बुनियादी है, लेकिन इसे अच्छे से याद रखना है, इसी को मशक करना है। क्योंकि मुरक्कब होकर के ही कलिमा, हरूफ मुरक्कब होकर कलिमा बनता है, और कलिमा बनने के बाद फिर वो कलाम बनता है मुरक्कब से, और कोई शक्ल नहीं है। इन्हीं मुरक्कबात को हमें सीखना है। ये जब मुरक्कब छोटे होते हैं मुब्तदा खबर की शक्ल में हम पहचान जाते हैं, लेकिन जब इकट्ठे कई लाइन में आते हैं वहां दुश्वारी होती है, और इसीलिए हम एराब सही से पढ़ नहीं पाते हैं, और उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले अल मुरक्कब फिल लुगत, मुरक्कब किसे कहते हैं? आसान है, हुआ कौलुन मुअल्लफुन मिन कलिमतैन औ अक्सर। मुरक्कब क्या है? बोर्ड काम नहीं कर रहा दो या सही से। दो से ज्यादा। हम दो या दो से ज्यादा कलिमा से बना होता है, मुअल्लफ या हम्म। मुकव्वन कह सकते हैं। वयकूनु लहु दलालतुन मुअय्यना, और उसकी खास दलालत होती है, बताता है। जैसे अला अशजरती, ये दो से बना है, दरख्त पर होने पे दलालत कर रहा है, एक खास हालत में ये होता है, ठीक है। अब जो मुरक्कब है वो कितनी तरह की होती हैं अरबी में? दो ही तरह के हैं। नंबर एक, बोलिए, वलहु किस्मान। नाकिस। नाकिस, मुरकब भी गैर मुफीद। हाँ, नंबर दो नाकिस कहिए या गैर ताम। मुफीद कहिए या गैर गैर ताम कहिए, मुफीद। एक ही बात है। हम्म, और यहताजु इला जुमलतिन उखरा औ अनासिर इदाफियतिन लिकई युक्तमल अल माना, इसे जरूरत होती है दूसरे जुमले की या दूसरे इजाफी एक्स्ट्रा अनासिर की, कंपोनेंट की, जो माना को मुकम्मल करे। जैसे अल शजरती है, अब इसका क्या माना है? दरख्त पर, समझ में नहीं आ रहा है, तो अब कहेंगे अत्ताइरु अल शजरती, अब बात समझ में आ गई। ये दूसरा जो है जुमला है, कह लीजिए एक कलिमा आ गया, अनासिर इजाफिया आ गया। या रअयतु अत्ताइर अला शजरती, ये पूरा जुमला आ गया जिसने अला शजरती के माना को पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया। तो ये हो गया नाकिस और ताम। दूसरा जुमला क्या है? दूसरी किस्म मुरक्कब की ताम है और मुफीद है। इसे क्या कहते हैं? यहमिलु मानी वादिहा व सरीहतन दून अल हाजति इला इबाहिन इदाफियिन, इस ये जो है अपने अंदर बिल्कुल वाज़ेह और सरीह माना रखता है, किसी वजाहत की, एक्स्ट्रा वजाहत की जरूरत नहीं होती है। इसी को हमने अपनी जबान में पढ़ा है कि जुमला मुरक्कब ताम उसे कहते हैं जिससे कोई फायदा हासिल हो। फायदा हासिल होने का मतलब ये होता है कि खबर बात समझ में पूरी तरह से आ जाए। जैसे रई तो ताइर अला शजरती, खाली मैंने टमाटर है परिंदे रहा है को वहां देखा, बता रहा था। हम्म। मैंने परिंदे को देखा कि दरख्त पर है, इससे बात पूरी समझ में आ गई। अंत रजुलुन अंत इमरातुन, आप लेडी हो, बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं जुमले ताम, मुरक्कबे मुफीदा। ताम। मुरक्कबे ताम वो है कि जो बिल्कुल अपने माना में वाज़े हो और बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये दो किस्में हैं। अब आगे देखना है कि इन दो किस्मों की कितनी किस्में हैं। अनवाउल मुरक्कबात अन्नाकिसा, मुरक्कबात जो नाकिसा है उनकी किस्में। नंबर एक, मुरक्कब वस्फी, इसे नाती भी कहते हैं। वाज़ेह है, बताने की जरूरत है।
बोलिए। यतकव्वन मिन सिफतिन व सर। मौसूफ, मौसूफ सिफत से मिलके बनता है। जैसे अत्तबातु अल इक्तिसादी, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये मौसूफ है, ये सिफत है। ये सब नाकिसा के अन किस्में हैं। मुरक्कब इजाफी यतकव्वन मिन मुदाफ मुदाफ इलैहि मिस्ल असहुम शरीका, कंपनी के शेयर, ठीक है, हिस्से, शेयर ऑफ कंपनी। अल मुरक्कब अल मजरूर यतकव्वन मिन हर्फ जर व इसम मजरूर, जैसे फिल मदरसती, इससे बात पूरी समझ में नहीं आ रही है। अल मुरक्कब अल ज़र्फी यतकव्वन मिन ज़र्फी ज़मान और मकान, जैसे फौक़त ताविला, ये हो गया मकान। और ज़माना इग़लाक़ ताम लॉकडाउन का ज़माना। इससे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ये भी मुरक्कब ज़र्फी हो जाता है। मुरक्कब अल बदली यतकव्वन मिन बदल व मुबद्दल मिन्हु या मुबदल मिन्हु, मिस्ल जा अखू का मोहम्मद, आपका भाई मोहम्मद आया, तो जा को यहाँ मिसाल में नहीं लेंगे, जो महल्ली इस्तिशाद है, वह अखू का मोहम्मद, तुम्हारा भाई मोहम्मद। इससे क्या पूरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर, अखू का नहीं आ मोहम्मद रही, ऐसे नहीं आते। नहीं आ रही है, तो वो कहलाएगा क्या? मुरक्कबे मुरक्कब नाकिस। नाकिस कहलाएगा, गैर मुफीद कहलाएगा। ठीक है, आगे देखें। अल मुरक्कब अल बदली हो गया। अल मुरक्कब अल अत्फी यतकव्वन मिन मातूफ व मातूफ अलैह, मिस्ल जाआ जैदुन व अमरुन, यहाँ भी जाआ महल से शाद नहीं, जैदुन व अमरुन, ये मुरक्कब हो रहा है, लेकिन इससे बात समझ में आ गई नहीं, यह भी मुरक्कब नाकिस कहलाएगा। ऐसे मुरक्कब तौकीदी है, ताकीद, यतकव्वन मिन मुअक्किद व मुअक्कद, दो से मिलके बनता है। जैसे जाअत तुल्लाबु कुल्लुहुम, अत्तुल्लाब कुल्लुहुम, इतना बोलने समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये सब किस्में किसकी हैं? मुरक्कबे नाकिस की हैं। नाकिस। और इन्हीं से कलिमात बनते हैं। ये सब मिलकर कभी मुब्तदा बनेगा, ये सब मिलकर कभी खबर आएगा। इसीलिए इनका जानना बहुत जरूरी है। तो कितनी हो गई बताए कोई यहाँ पे? सात। सर। 7 हैं। चलिए आगे देखिए। जी। अल मुरक्कब अल मस्जी, अल मुरक्कब अल मस्जी हुआ कुल्लु कलिमतैन रुक्किबता व जुइलता कलिमतन वाहिदतन, हर वो कलिमा जिसको मुरक्कब कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो और एक कलिमा बना दिया गया हो। जैसे सीब वही, तो सीब अलग है और वही अलग है। हादर व मौत अलग अलग था, तो हादर मौत या हादर मौत कर दिया गया है। सबाहन व मसाउन था, तो सबाह मसा कर दिया गया है। शजरुन व मजरुन था, शजर मजर कर दिया गया है। मुतफरक होना, तफरकन नासु शजर मजरा, है तफरकु, मुशत्तितीन, अलग थलग हो जाना, तितर बितर हो जाना। मुतनासिरीन मुतबासिरीन कह सकते हैं। ठीक है, तो मुरक्कबे मस्जी है, दो कलीमा होता है, लेकिन दोनों को मिला करके क्या बना लेते हैं? एक कलीमा बना लिया जाता है। मुरक्कबे मस्जी या मुरक्कबे इम्तिजाजी कहलाता है। जैसे मेरा नाम है सईद नूर, तो सईद मेरा नाम है, वह नूर है, नूर मोहम्मद वाली साहब का नाम है, तो उसको हटा के वाह उड़ा दिया, सईद नूर कर दिया, तो कौन जी। सी तरकीब हो गई है? मुरक्कब मस्जिद। तरकीब मस्जिद। मस्जी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इनका जी। एराब क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, सब तरकीब में पढ़ते जाएंगे। और जितनी जल्दी इसको कवर कर लेंगे, आ, हजम कर लेंगे, उतनी जल्दी हमारी आ, अरबी पढ़ने और बोलने की सलाहियत मजबूत होगी। वल मुरक्कब अल मज़ी अला सलासित अनवा, इसकी 3 किस्में हैं। इसमें अलम होता है, ये अरब व एराब माला यंसरिफ, यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, इसको भी तफसील से पढ़ेंगे कि इसका एराब जो गैर मुनसरिफ का एराब होता है अगर अलम है तो। जैसे इज़हरत बाल बक्कू इज़हार अजीमा, बाल बक शहर का नाम है, बाल व बक्कू अलग अलग था, दोनों को मिला के एक कर दिया गया। तो चूंकि ये फाइल बन रहा है और गैर मुनसरिफ का इस पर एराब आएगा, तो वो दम्मा तो आएगा आगे लेकिन तरफ तनवीन यहाँ पे आएगी। ऐसे नहीं है, आएंगे। ऐसे इसमुन यंतही भी वही, और एक शक्ल क्या है मस्जी की, जिसकी लास्ट में वही आए। युबना अलल कसर दाइमन, इसका एराब क्या होगा कि हमेशा ये मकसूर ही रहेगा, यानी मबनी अलल कसर होगा। सीबवैहि आलिमुन अज़ीमुन, जा सीबवैहि, रअयतु सीबवैहि, मररतु बिसीबवैहि, कुछ भी बोलिए, ये सीबवैहि ही रहेगा। बहुत बड़े आलिम हैं ये सीबवैहि, इनकी मशहूर किताब है नहव की, अल किताब उस किताब का नाम है। इस्मुन गैरु अलम, ऐसा अलम नाम होगा जो अलम नहीं होगा। युबना फी है जुज़आन अल फत्ह, वो दोनों जो जुज होंगे, क्योंकि दो से मिलके बनता है, इसे मुरक्कब मस्जी कहते हैं, मबनी अलल फत्ह होगा। तो मिसाल इअमल सबाह मसा, सुबह शाम काम करते रहो, तो सबाहन व मसाअन था,
दोनों को हटा करके मिला दिया गया तो ये हो गया। अंत जारी, यू आर माई नेबर, आप मेरे पड़ोसी हो। बैता बैता यानी घर करीब करीब है। बैतन व बैतन, आपका घर मेरे घर से बैतन ली बैतिन है, उसको मिला के बैता बैता कर लिया। मुलासिकन, बिल्कुल जुड़े हुए, मुझसे करीबी आप मेरे पड़ोसी हो, तो ये हो गया। और ऐसे ही जो है अदद भी जो होता है, अहद अशरा जो होता है वो अहदु व इशरून होता है, और दोनों को मिला दिया जाता है, वाव को उड़ा के अहद अशरा हो जाता है। लेकिन चूंकि ये गिनती है इसलिए नहवी इसको अलग से अदद अददी मुरक्कब अददी कहते हैं। किसे कहते हैं मुरक्कब दे दिए, देखिए। हुवल इस्मुल लदी रुक्किबा मिनल आदाद मिन अहद आशर इला तिसात आशर, 11 से लेकर 19 तक, व मिनल हादी आशर इला तासे आशर, ये अदद वस्फी हो गया। ऐसे इसको बनाया जाता है, इसको भी पढ़ेंगे किस तरह से इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर हो मुअन्नस हो वो सब आएगा। हादिल मुरक्कबात ला तुशक्किल जुमलतन तामा बिमुफरदिहा, ये जितने मुरक्कबात हैं ये तने तनहा कोई ताम जुमला नहीं बनाते हैं, तो क्या कहलाएंगे जब ताम नहीं बनाते हैं तो? मुरक्कबे नाकिस। नाकिस। बल तहताजु इला मुस्नदिन व मुस्नदिन इलैहि लितकवीन जुमलतिन मुफीदा, बल्कि जरूरत होती इनको एक मुस्नद की और एक मुस्नद इलैहि की जुमला मुफीदा बनाने के लिए। मुस्नद मुस्नद इलैहि आपने पढ़ा होगा, ये बार बार इस्तेमाल होता है, इसको अच्छे से समझ लें। मुस्नद के माने इस्नाद करना, निस्बत करना। मुस्नद इलैहि जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। अब यहाँ पे एक जुमला है, जैसे अस्समाउ साफियतुन, समा मुअन्नस होता है, मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है। आसमान बिल्कुल साफ है, क्लीन है। द स्काई इज क्लीन, यानी इसमें बादल वादल नहीं है। तो ये जुमला जो है, ये मुरक्कब जो है वो क्या है, ताम है या नाकिस है? काम है सर। ताम है, इसलिए काम कि है। इसमें बात समझ में आ रही है। तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि मुरक्कब ताम उसे कहते हैं जिसमें इसनाद पाई जाए, ठीक है, उसमें इसनाद पाई जाती है। और मुस्नद मुस्नद इलैहि होता है। तो आपको ये बात मालूम हो गई कि मुस्नद के माने होते हैं निस्बत करना, और मुस्नद इलैहि के माने होते हैं जिसकी तरफ निस्बत की जाए, पॉइंट आउट करना। तो आसमान साफ है, साफ होने की निस्बत किधर की गई है? आसमान की आसमान। तरफ। तो आसमान क्या कहलाएगा? मुस्नद। मुस्नद मुस्नद। इलैहि, इसकी तरफ निस्बत की गई है, तो मुस्नद इलैहि। और किसकी निस्बत की गई है? काफी। साफ होने साफ। की, तो ये हो गया मुस्नद। मुस्नद। ठीक है। इसी को दूसरे जी। अल्फाज में कहते हैं महकुम अलैहि और महकुम बिही। तो साफ होने का हुक्म किस पे लगाया गया है? अस्समा पर, तो क्या हो जाएगा? महकुम अलैहि। और अलीहा। किसके जरिए से हुक्म लगाया गया है? साफिया के जरिए से, तो ये हो जाएगा महकुम बिही। बिही। बस इस्तिलाह का जी। फर्क है, बाकी कुछ है नहीं। मुस्नद और मुस्नद इलैहि कसरत से इस्तेमाल होता है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे चल के पढ़ेंगे कि फेल मुस्नद हो सकता है या मुस्नद इलैहि हो सकता है, नहीं होगा, वो सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो एराब हमने मुरक्कब ताम की जो तारीफ ले रखी है, उसको पढ़ें, समझ में बात आ जाएगी। एक मिनट। विजिबल है? जी। जी। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अल मुरक्कब ताम अविल मुफीद हुवल मुरक्कबुल इस्नादी, यानी जुमला है, जो इस्नाद पाई जाएगी तो जुमला होगा। वहुवा मा तअल्लफा मिन मुस्नदिन व मुस्नदिन इलैहि, मुरक्कब ताम या मुफीद वो है जो एक मुस्नद और मुस्नद इलैहि से मिलकर के बना हो। जैसे अस्समाउ साफियतुन, तो फस्समा, यहाँ पे जो अस्समा है वो क्या है? मुस्नद इलैहि है। लिअन्नना अस्नदना इलैहि अस्सफाअत, इसलिए कि साफ होने की निस्बत हमने उसकी तरफ की है। ठीक है। वह हकमना अलैहि बिही, और हमने उस आसमान पर हुक्म लगाया है, बिही उस सफा के जरिए से। वह सफा मुस्नदुन, और सफा मुस्नद है और महकुम बिही है। लिअन्नना अस्नदनाहु इला समाई, इसलिए कि हमने उसकी निस्बत की है आसमान की तरफ। वह हकमना बिही अलैहि, और उसके जरिए से हमने हुक्म लगाया है, तो वो हो गया महकुम बिही अलैहि, आसमान पर लगाया है, तो वो क्या हो गया? मुस्नद महकुम अलैहि मुस्नद इलैहि। समझ में आ गया मुस्नद मुस्नद इलैहि का कॉन्सेप्ट? जी सर। ये बार बार आएगा, बुनियादी चीजें हैं। आगे चलते हैं। अब सारी चीजें हो गई, ये भी आपने जान लिया
कि हम जो कुछ भी अरबी में पढ़ेंगे वो या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। इस तीन के अलावा कुछ आता है क्या? नहीं आएगा। कोई भी नहीं अरबी हो, सर। कोई भी किताब हो, कोई भी आर्टिकल हो, कुछ भी हो, इस्म फेल हर्फ ही होगा। और ये भी पढ़ लिया कि एराब तीन ही आएंगे, या तो उस पे रफा होगा, या नसब, या फतहा होगा। जज्म हो तो जज्म होगा, बाकी और कोई एराब आ ही नहीं सकता। अब बस हमको इसको कवर करना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये एराब आते हैं। दो जगह सिर्फ ऐसी है जहाँ पे जर आ सकता है, एक तो हरफ जर वो बजाते खुद दाखिल हो, या फिर वो मुजाफ इलैही हो। फिर जी। मरफू वहां होगा, 8 जगहों में से कोई एक जगह होगी। मंसूब 12 में से कोई एक ही होगा। बराबर। ठीक है। और बैक वक्त कई आते हो ऐसा नहीं है, बल्कि एक बार में क्या होगा, एक ही एराब आएगा, उसी एक को ही हमें हालत पहचानना होगी। है। जितनी जल्दी हम इसको पहचान लेंगे, कवर कर लेंगे, उतनी फर्राटे से हमको पढ़ना और बोलना दोनों आ जाएगा। इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जी। हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि एक वक्त में एक ही एराब तो आएगा, लेकिन एक पूरी इबारत में दसियों तरीके के कवायद आ जाएंगे, एराब आ जाएंगे। तीन एराब के अंदर जी। दसियों तरह के कायदे आ जाएंगे। वही धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस करना है। तो इसको पहले पार करते हैं कि तनक़सिमुल जुमलतु फ़िल अरबिय्यति इला क़िस्मैन रईसियैन ला सालिसा लहुमा। ये अब यहाँ से अहम बहस आपकी शुरू हो चुकी है कि जुमला अरबी में दो किस्म है बुनियादी, तीसरा कोई किस्म नहीं है। पहला जुमला इस्मिया है और दूसरा जुमला खबरिया है। अंग्रेजी में यही है, लेकिन अरबी में दोनों तरह से हो सकता है। इसे कहते हैं जुमला इस्मिया, कि अगर ये शुरू होता है इसम से तो वो जुमला इस्मिया होगा। और दो इसके बुनियादी रुकन होते हैं जो अभी हमने पढ़ा, मुस्नद और मुस्नद मुस्नद इलेक्ट। इलैही। जुमले फेलिया के अंदर भी ये होगा, मुस्नद और मुस्नद इलैही। अल इलेक्ट। जी। मुक्तदा अल इस्मुल्लज़ी नब्दउ बिल जुमला, वो इसम है जिससे हम जुमला को शुरू करते हैं। वयकूनु मरफूअन, या मरफू होता है। अभी आपने पढ़ा कि एराब जब आता है तो उस पे जब आमिल दाखिल होता है वही क्या करता है, उसको एराब बनाता है। लेकिन जब इराक देते मुक्तदा हैं। में कौन सा आ गया, इस पे कौन सा अमल दाखिल है, तो इसके कोई अमल दाखिल नहीं है, बल्कि बजाते खुद ये आमिल माना जाएगा। यानी मुब्तदा होने की वजह से इस पे क्या होगा, रफा रफा आएगा। पेश है। कायमुन खड़ा है, इस पे अरब कहाँ से आ गया भाई, खबर होने की वजह से आ गया। तो ये दो किस्में हो गई, जी। मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू होती है। खबर हुआ मा युकमिल मानल जुमला, खबर वो है जुमले के माने को मुकम्मल करे, माल मुब्तदाई, मुब्तदा के साथ मिल करके, वह बिही ततिमुल फायदा, और उसी के जरिए से फायदा मुकम्मल हो जाता है। फायदा को इंटरेस्ट पैसा से नहीं मिलता है, फायदा का मतलब बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है, वो फायदा है। फायदतुल कलाम यहाँ पे मुराद है। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी समझ जी। में ना आए जी सर। पूछ लें। अब यहाँ जो बात बताई जा रही है असल तो प्रैक्टिकल चीज है ये। देखिए, अभी हमने लिखा था रजुल कायम, वही चल रही है। जब कोई एक जुमला ले, मुब्तदा या खबर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। नो सर। लेकिन अभी जितने हमने मुरक्कबात पढ़े हैं, उसमें से कई मुरक्कब मिलकर के तब मुब्तदा बनेगा, कई मुरक्कब मिलकर के तब खबर बनेगी। वहां पे दुश्वारी पेश पेश आती है। इसीलिए यहाँ पहले बता दिया जा रहा है कि अल खबर लैसा दाइमन कलिमा वाहिदा, कि खबर हमेशा एक ही कलिमा मुफरद नहीं होता है, बल याती अला सलासती अशकाल, उसकी तीन शक्लें हैं। खबर मुफरद होगी, मालई सा जुमला वाला शिबा जुमला, क्योंकि जुमला ना हो, शिबह जुमला ना हो, जैसे अल इल्मु नूर या रजुलु कायमुन, मिसाल आपके सामने है। खबर जुमला, जुमला इसमिया, मिसाल अशजरतु अगसानुहा आलियतुन। तो यहाँ पर जो खबर है वो जुमला खबरिया है। अब तरकीब यहाँ से एक एक जुमले की करके चलना है। पहले मैं कर देता हूँ और धीरे 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 कराऊंगा। कि अशजरत मुब्तदा हो गया। अब इसकी जो खबर है वो मुफरद नहीं है, कलीमा वाहिदा नहीं है, बल्कि ये पूरा है। अब क्या होगा, अगसान क्या है बताइए? अगसानुहा, उसकी टहनी। आप लोग एडवांस के हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कौन से ये। ये मुजाफ अभी हमने मुजाफ ले। पढ़ा मुजाफ 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 ले, तो अगसान बोलिए, अगसान बोलिए, क्या हो गया? मुजाफ मुजाफ ले मिलकर मुजाफ हो गया। और हा की जमीर क्या हो गई? मुजाफिला। अब दोनों को जोड़िए, मुजाफ को मुजाफ, जब भी दो चीजें मिल जाए फौरन उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी उसको बताना होगा। तो अवसान मुजाफ, हा जमीर मुजाफ इलैहि हो गया, और दोनों मिलके क्या बनेगा? मुब्तदा। मुब्तदा। गुड। मुब्तदा क्या चाहिए? खबर चाहिए। खबर चाहिए, है कहाँ, जल्दी बताइए। तो आलिया तो आलियतुन खबर है,
अब खबर भी हो गया, मुब्तदा मुब्तदा खबर मिल गए, की मुब्तदा खबर अशजरा से मिल की करके, खबर। अशजरा की खबर। नहीं, मुब्तदा खबर से मिलके पूरा जुमला तो बनाइए पहले, जुमला जुमला बन गया ना जुमला वो। इसमें खबरिया होगा, जुमला जुमला इसमें इस्मिया खबरिया। खबरिया होकर के अशजरत मुब्तदा की खबर। अब अशजरत मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इसमें तो खबरिया यहाँ पे होगा। देखो, खबर जो है जुमले की शक्ल में है। कभी ऐसा होगा कि ये जो खबर आ रही है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तीसरे लाइन में खबर होगी, मुब्तदा यहीं पे रहेगा। तो सबको कवर करना पड़ेगा क्या क्या बन रहा है, यहाँ सब चीजें जो है जो याद होने का। कोई अगसानु आलियन कह दे, आलियन कह दे तो कैसे, आलियन कह दे तो ऐसे गलत हो जाएगा, आलिन कह देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि मुअन्नस होना चाहिए। तबाबुक तो मालूम ही है। अब देखिए जुमला फ़ैलिया, यानी मुब्तदा की खबर जुमला फ़ैलिया होगी। अब तालिबु युज़ाकिरु दुरूसहु, तालिब इल्म अपने दर्स का मुज़ाकरा करता है। क्लियर है? अब तालिबु क्या हो गया? जी, ये मुब्तदा हो गया। मुब्तदा हो गया। उसकी जो खबर आ रही है पूरा जुमला है, युज़ाकिरु दुरूसहु, तो फेल है, फेल को क्या चाहिए? फाइल चाहिए। फाइल, बोलिए कहाँ है फाइल? इसके अंदर जो जमीर छुपी है वो हुआ युज़ाकिरु जमीर। फेल, हुआ की ज़मीर फाइल, राजे बजानी तालिब, फेल का बात पूरी हो गई। अब क्या चाहिए? जी मफूल दिख रहा है तो बताइए, दुरूस सहू के जी पहले जी। तरकीब कीजिए, तो दुरूस क्या वो है? मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर, मुजाफ हाँ, मुजाफ इलैहि मुजाफ मिलकर मिल करके क्या मफूल। बनेगी? मफूल बिही। जुज़ा अब करो हो का गया सर। मफूल। अब युजा के जी, रोफेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर क्या होगा? जुमला सालिया खबरिया होगा। जुमला फेलिया खबरिया होकर के अब क्या हो जाएगा? अब तालिबु मुब्तदा की तालिब की खबर। खबर, अब तालिबु मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया हो जाएगा। तो खबरिया। ये शॉर्ट है, इतनी तरकीब करना काफी नहीं है। जब युजाकिर फेल आ गया तो फेल के अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि 6 चीजों को हम कवर करेंगे। पहले मुजाहिर मारूफ मुस्बत, असबाबे मुफ़ाअला, सही, सेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब, हुआ के ज़मीर फाइल, राजे बजानी तालिब, या युज़ाकिर हुआ जी के ज़मीर फाइल हो जाएगी, ज़मीन नहीं लौटेगी यहाँ पे। या लौटा चाहे तो लौटा सकते हैं, हूँ में लौटाना जरूरी है। दुरूस मुब्तदा, हु ज़मीर, मुब्तदा बोल रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। मुजाफ मुजाफ इलैहि। हाँ, हु ज़मीर दुरूस मुज़ाफ, हु ज़मीर मुज़ाफ इलैहि, राजे बजा, जब भी ज़मीर कहीं आएगी तो उसे आपको लौटाना होगा तरकीब के अंदर, इससे पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मुब्तदा यहाँ पर है, ये एक जो मर्जा यहाँ पर है, और कई सेंटेंस के बाद उसका मर्जा आ रहा है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? इसी तरकीब से पकड़ेंगे, और जब तक पकड़ेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, इबारत पढ़ने में गलती हो जाएगी। ठीक है। वो जमीर राजे बजानी अत्तालिब, दुरूसहु अपना दुरूस, और जमीर का मर्जे बताने के साथ साथ उस जमीर की तायन भी करनी जरूरी है। वो जमीर बराए वाहिद मुजक्कर गायब, इसलिए कि दुरूसहु, दुरूसहुमा, दुरूसहुम, दुरूसहु, दुरूसहा, हुन्ना सब आता है, तो सबकी आपको तायन करके तरकीब करनी होगी, जो मुस्तकिल हम कराएंगे। तीसरी शक्ल, खबर शिबह जुमला, शिबह जुमला की सूरत में खबर आए। युमकिन अन यकून अल खबर शिबह जुमला, ये भी हो सकता है कि खबर शिबह जुमला हो। वह ततकव्वन मिन जार और मजरूर, शिबह जुमला किससे बनता है? जार मजरूर से बनता है, या फिर जर्फ से बनता है जो ऊपर आ गया है। ठीक है, ऊपर इसकी मिसाल आ गई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसी को फ्रेज जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। अल किताब फिल हकीबती, किताब कहाँ है? द बुक इज बैग इन है। द बैग। और बैग। मिन जर्फ, या जर्फ से बनता है, जैसे अल अस्फूरु फौका शजरती, चिड़िया कहाँ है? द बर्ड इज के ऊपर। ऑन द ऑन द ट्री। ट्री, ऑन द ट्री है, हो गया। अब इसका तर्जुमा जो करेंगे वो इस तरह, अल किताब मुब्तदा हो गया, और फिल हकीबती क्या होगा? एक जार मजरूर। जार मजरू, खबर हो रही है, खबर की जगह पर है, शिबह जुमला के तौर पर फौका शजरती। अब एक बात ध्यान रख लें कि इसको तरकीब में, या अरबी जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आप इसको खबर डायरेक्ट नहीं बना सकते, न ही जार मजरूर को और न ही जर्फ मजरूफ को। इसलिए कि अरबी जबान का जी इसलूब एक कायदा है कि जार मजरूर जहां कहीं भी आएगा या जर्फ आएगा, वो कहीं ना कहीं मुतअल्लिक होगा, मुतअल्लिक करना उसको जी। जरूरी होता है। मसलन मैं यूं कहूं कि, एक मिनट, एक और डिस्टर्ब कर रहा है, इधर उधर को लिख रहा है। हाँ, कोई ऐसा जुमला बताएं जैसे कतब तू बिल कलमी, छोटा ही लेते हैं, बिल कलमी जार मजरूर हो गया। जी।
अब इसका तर्जुमा हुआ कलम से, तो कलम से क्या हुआ है? कलम लिखा से क्या हुआ? है। लिखा है। तो साफ पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक किससे होगा? कतब्तु से होगा। तो यूं जी। कहेंगे कि जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ, कतब्तु के कतबा फेल अपने फाल और मुताल्लिक से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया होगा। ये जरूरी है, लाजिम है। तो कहाँ कहाँ मुताल्लिक होता है उसको हम पढ़ेंगे। फेल से मुताल्लिक होता है, याद रखिए, मस्दर से भी हो सकता है, अस्माए मुश्तक्कात से होता है। इसमें जामिद से कभी भी नहीं होगा। तो अगर कलाम के अंदर है तो मुताल्लिक कर दिया, नहीं है तो क्या? नहीं है तो उसको हमेशा आपको सपोज करना पड़ता है, महजूफ मानकर उसको कलाम को मुकम्मल करना पड़ता है। और आम तौर से जो दो लफ्ज हैं, एक काइन है, ये काइनतुन हो जाएगा अगर मुअन्नस है तो, और एक मौजूदुन है जो बहुत ही कॉमन है, जो एक हर जगह फिट बैठ जाता है, मुअन्नस भी। तो किताब जो कि मुजक्कर है तो क्या अल किताब मौजूदुन हो जाएगा, या जी। काइनुन, काइनवन है, वजूद एग्जिस्ट करता है। तो किताब है किसमें? बैग में। ऐसे है बैग में। अल उसफूर फौक शजरती, दरख्त के ऊपर परिंदा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया है? का क्या मतलब आ रहा है? मौजूदुन और काइनुन तो हो जाएगा, मौजूद लेकिन फोकस। आप बैठना भी कर सकते हैं, जा लिसुन, ये भी तो हो सकता है जी। ना। तो जो परफेक्ट बैठ जाए, बशर्ते कि इसमें जामिद से आप मुतालिक नहीं करेंगे। ये चूंकि अस्माए मुश्तक्कात है, इससे मुतालिक होता है। फेल होगा, जलसा भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां जैसी जरूरत हो कर सकते हैं। लेकिन दो चीज बहुत कॉमन है, काइन और मौजूद, जो हर जगह फिट बैठ जाता है। कहीं कहीं हो सकता है फिट ना बैठे, आपसे आपको सबाक से उसको कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारी बहस मुकम्मल हुई कि खबर जो शक्ल होगी वो जरूरी नहीं है कि मुफरद ही हो, तीन तरह से आ सकता है। शिबे जुमला की शक्ल में आ सकता है, उसकी जरूरत पड़ ली, और जुमले इसमिया की खबर में आ सकता है, जुमले फेलिया की खबर की फॉर्म में भी आ सकता है, शक्ल में आ सकता है। ऐसे ही मुब्तदा के लिए जरूरी नहीं है कि वो मुफरद हो, वो भी पहले मौसूल सिफत से मिलकर तब मुब्तदा बनेगा, कभी मुरक्कब इजाफी मिलकर बनेगा, कभी मौसूल आ जाएगा, फिर मौसूल के बाद सिला आएगा, सब कुछ मिलकर के तब मुब्तदा बनेगा, लंबी लंबी इबारत आएगी। और उसी को हम एडवांस लेवल में कवर करने वाले हैं। बुनियादी चीजें तो आप बचपन से पढ़ गए होंगे और अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन इन्हीं बुनियादी चीजों को बिल्कुल जबान जद रखना है, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। अब आए जुमले फेलिया किसे कहते हैं? आसान है, वही लती तब्दउ बिल फेल, जो फेल से शुरू होता है, और ततकव्वन मिनल फेल वल फाइल, फेल और फाइल से शुरू होता है। मफूल अगर मुताद्दी है तो मफूल भी होता है। बस जो मुस्नद और मुस्नद इलैह जो पा लिया गया, तो वो जुमला मुकम्मल हो जाता है। बराबर जैदुन, यहाँ मफूल नहीं है तो मफूल की जरूरत नहीं होगी, मेन यही होता है। इसीलिए जब मुस्नद मुस्नद इले दो चीजें मिल जाए, तो बाकी चीज को बाज नहवी जो बड़े लेवल की इब्न हिशाम वगैरह हैं, उसको जवाइद से ताबे करते हैं, फजला से ताबे करते हैं कि वो जायद चीजें हैं। यानी कलाम के कलाम बनने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, कम्प्लीमेंट के तौर पे तो वो है कि बाकी चीजों को वो करते हैं, लेकिन नफ्से कलाम के लिए जितनी चीज की जरूरत हो, जिससे बात समझ में आ जाए, जिससे मुरक्कब ताम और मुफीद कहा जा सके, उसके लिए सिर्फ और मुस्नद इले का होना जरूरी है। तो ज़रब जईदुन, जरब की निस्बत की गई किसकी तरफ? जैद की तरफ। ये क्या हो जाएगा? जरब मुस्नद हो गया, और निस्बत जैद की गई मुस्नद जरब है। की, तो ये हो जाएगा मुस्नद। मालूम हुआ कि फेल कभी मुस्नद इलैह नहीं होगा। जब हम इस्म और जी। फेल की अलामत का जिक्र करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी बास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये अहम चीज मुकम्मल हुई। अब यहाँ पे कुछ तमरीन है जिसे आप करेंगे। तो हाँ, अभी वक्त है हमारे पास, 10-15 मिनट है, कर लेते हैं। युस्म यहाँ पे क्या बताना है? उद्दित नवाल जुमला इसमिया है, फेलिया है, वाइन रुकनैहा अल असासियैन, उसके दोनों बुनियादी रुकन को मुतय्यन कीजिए। बुनियादी रुकन कौन कौन से? मुस्नद और अगले। मुस्नद इलैहि। तो युस में पढ़े कोई एक पढ़े, हम पढ़े, हमारे पढ़ने से क्या फायदा, कोई भी पढ़े एक। युसम्मिरु युस में शजर। एक है, युसम्मिरु या युस्मिरु ज्यादा बेहतर है, अस्मरा फल्लाना। युस्मिरु शजरु फिर रबी, ठीक है, दरख्त फलता है मौसम बहार में, स्प्रिंग में फल देता है, ठीक है। ये सब अंग्रेजी में जी। करना है, बाद में हम करेंगे। अभी पहले यूज टू हो जाइए कायदे से और इबारत से। चलें बताएं, ये जुमला फेलिया इसमिया है, अव्वल वाले में फट से बता दें। चलिए जुमले साथ हैं। बहुत, युसम्मिरु इसलिए कि फेल मुस्नद से शुरू अश। होगा। युस्मिरु मुस्नद
الشجر الشجر, مسند إليه. गुड. مسند फिर إليه. रबी. तो फिर दो रबी आपने जर दोनों नौ बता दिया आपने कि ये क्या है जी। जुमले. एक तो जुमला इस्तिफालिया है, और फेलिए इसमें तो बता दिया. मुस्नद है अशजर मुस्नद इलैह। और मुस्नद कौन सा है? युस्मिर। युस्मिरु। मुस्नद है युस्मिरु. और मुस्नद इले क्या है? अशजर। अशजरु. ऐसे ही बाकी आपको करना है. अब फौरन बताते चलिए. अस्सब्रु मिफ्ताहुल फरज. जी। असब्र मुस्नद सब्र को इलैह, शादी मिफ्ताहुल ये फरज मुजर तक सब्र मिलकर मुस्नद। और ये अच्छा जुमला सब इसमें है। लैस्मिया बता दीजिए खट से फौरन. और ये भी सही है. अदा अल मिसबाहु अल गुरफता. चिराग ने जी। कमरे कमरे को को रोशन. रोशन किया। जी। अज़ा, ये जुमला सालिया है। अज़ा मुस्नद है, अल मिसबाहु मुस्नद इलैह। गुरफा क्या है? अल गुरफा इसका मफूल भी है। मफूल भी है. कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे है. जो जो रुकनैन असासियैन है वो यही दोनों हैं. इसका ध्यान रखिएगा. अल जुनूद युदाफिऊन अनिल वतनी. द सोल्जर अपने डिफेंड्स. वतन को जी। जी। जुमले इसमिया है. बोलिए फटाफट. ये जुमला इसमें है। अल जुनूद मुस्नद इलैह। युदाफिऊन ये बनेगा, ये फेल है। ये फेल है तो युदाफिऊन, ये हाँ. अल जुनूद मुस्नद इलैह है, युदाफिऊन मुस्नद है। फेल है तो मुस्नद अनिल इलैह वतन होगा नहीं. मजहूल। जी जी जी। जार मजरूर किससे मिल रहा है? मुतल्लिक होगा. जी जी, मुतालिक युदाफिऊन फेल का। युदाफिऊन फेल से मुतल्लिक हो जाएगा. तमरीन सानी है. इस्तखरिज अल खबर फिल जुमल अत्तालिया व बय्यिन नौअहु बिदिक्क़ा. जुमले खबर खबर को निकाल. इसमें खबर कहाँ है और क्या उसकी नौ है ये बताना है आपको. तो अल इल्मु, या पढ़ें कोई पढ़े. गलती पढ़े कोई दिक्कत नहीं है. यार आप जाय करके पढ़ें. ला इमाद लहा। ठीक है. अब बताना है जी। आपको खबर किस लेकिन शक्ल में है. तीन शक्ल ये पढ़ी जी हमने. अल इल्म मुब्तदा है. जी। यरफउ बुयूतन ला इमाद लहा. या पूरा जुमला जो खबर बन रही है तो खबर की शक्ल में है. जुमले की शक्ल में, जुमले जुमला कौन सा? तालियों की शक्ल में। जुमला. तालियां। गुड. तालियां। नौ बताइए. नौ इसमें वही हो गई. यहाँ जुमले पे जुमला है ये इसमें हो गया खबर जुमला. और यहाँ पे नौ आ जाएगा कि जुमले फैलिया है. हो गया. इसमें ऐसे अल कायद इसमें अमामल जैशी. यहाँ पे क्या है? सर खबर. ये सर ये खबर की नौ बतानी है या पूरे जुमले की किस्म बतानी दोनों बतानी है कि खबर कैसी है. ठीक है. पूरे जुमले के नहीं से खबर बतानी है. है? खबर नहीं, की. जो हमने ना वो लिखा तो फैलिया लिखा, ये अगर पूरे जुमले का है फिर ये इसमें है ये हटा इसलिए दी. मैं। हाँ देखिए. अल खबर क्या है? जुमला है. नाउ क्या है? जुमला फैलिया है. या दूसरी पहले खबर क्या? अमामल जैसी ये खबर है तो कौन सी शक्ल में है ये जुमला? खबर. जी ठीक है। जी। ये क्या कहते हैं, शिबे जुमला में है। शिबह जुमला में एक ही चीज है. नौ के अंदर भी हो जाएगी शिबह जुमला. ठीक है. अल्लौहतु अलवानुहा जाहियतुन. ये जी। पूरा खबर इसके बारे में जुमला, बताना है. तो बताइए कि खबर की शक्ल में मुफरद है या शिबह जुमला है या जुमला है? ये जुमला इसमें है। जुमला है. और इस्मिया है तो जुमला इस्मिया हो. जी। अल मोमिन सादिक. ये मोमिन सच्चा मुफरद है. है सर, जुमले इसमें मुफरद है तो एक ही है सादिक तो इसकी एक ही आ खबर है और ये जाएगा. यहाँ भी मुफरद। मुफरद रहेगा और यहाँ भी मुफरद ही रहेगा. मुफरद। तो ये इसकी है. और ये तरकीब ना काफी है. बिल्कुल इब्तदाई लेवल की है लेकिन चूंकि पहली क्लास है इसलिए कवर किया जा रहा है इसको. असल में इसको जो पढ़ना है वो पूरी तरकीब करके पढ़ना है. और उसके लिए पूरा यहाँ पे एक मुस्तकिल टेक्स्ट है. वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए इसी को कर लेते हैं. अगर ये कर लिया तो ये बहुत आसान है. उससे पहले एक जुमला यहाँ पे कर लेते हैं ताकि कुछ और आसानी समझ में आ जाए. वह अल इल्म यरफउ बुयूतन ला इमाद लहा. कि इल्म आ, बगैर सुतून के घरों को भी बुलंद कर देता है. इल्म की ये खुसूसियत बयान की गई है. अब इल्म यरफउ बुयूतन ला इमाद इसकी तरकीब करनी है. मुब्तदा खबर की तरकीब बहुत सी आसान सी है तो कोई एक आदमी करे. अल इल्म बोलिए मुब्तदा. यरफा फेल, इसके अंदर हुआ फाइल है, बयूतन फिर मफूल। ठीक है. अब यहाँ से कॉपी हो तो लिख लीजिए. ये इसको अभी से शुरू कीजिए. क्या लेट करें. फेल के अंदर हमें जो लिखना होगा वो छह चीजों को देखना होगा. नोट कर लीजिए भी. फेल
पहले माजी, मसलन यहाँ पे माजी है ना, मुजारे है। चलिए मुजारे होगा तो मुजारे लिख देंगे, पहले मुजारे है। मारूफ है तो मारूफ लिखेंगे। मुस्बत है या मनफी है? मुस्बत है, सही है। ये- जी मुस्बत है। किस बाब से है? असबाबे रफा यरफा किस बाब से है? फतह यफ्तहु। फतहा। कितनी चीजें हो गई? फेले यफ्तहु। मुजारे मारूफ मुस्बत। असबाब फतहा यफ्तहु। सेगा वाहिद वाहिद मुज़क्कर गायब। मुजक्कर गायब। वाहिद। हो गया। जी। और और उससे ये पहले सही है। सेगा, सेगा से पहले लिखेंगे यहाँ पे 5वें नंबर पे सही। ये सर्फी जी। तहकीक, ये 6 चीजें आपको हर फेल के अंदर बताना होगा। ठीक है। टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना। उसके बाद एक साथ में आप बोलने लगेंगे यार, फाउ पहले माजी मारूफ मुस्बत असबाब फतह यफ्तहु सही सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब। हो गया। अब फेल की जब जी। तहकीक हो जी। जाएगी तो फेल को क्या चाहिए? फाइल चाहिए होता है और मफऊल चाहिए होता है अगर वो मुतअद्दी है। तो जल्दी से बताएं, जब फाउ फेल की तहकीक हो गई, अब फाइल कहाँ है? इसके अंदर जो हुआ ज़मीर छुपी है। वो हुआ कि जमीर फाइल। अब जमीर जब आ गई तो लौटाना पड़ेगा, कहाँ लौटेगी? वो बोले राजे बजानी इल्म की तरफ। इल्म। अब फेल को फाइल मिल गया, जोड़ना था 2 चीज मिलने पर, लेकिन तीसरी चीज की जरूरत है, वो थे बुयूतन। जी मफूल। मफूल तो बिही। मफूल तो है, मफूल भी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आ रहा है, और मैं बताया था ये पूरा जुमला आ रहा है, ला इमादा लहा, ला इमादा साबिततुन लहा। लगा। ठीक है, तो पूरा जुमला आ रहा है। और जब नकरा के बाद, कलीमे नकरे के बाद जुमला आए तो याद रखिएगा वो क्या बनता है? सिफत बनती है। जब भी कोई कलीमा ऐसा आ रहा है जो नकीरा है और नकीरे के बाद कोई जुमला आ रहा है, तो वो जुमला क्या बनेगा? सिफत। सिफत बनेगी। तो बुयूतन जी। मौसूफ हो जाएगा। अभी मफूल भी नहीं बनाएंगे, मफूल की भी जरूरत है। बुयूतन मौसूफ है और ला इमाद लहा उसकी उसकी सिफत सिफत। बनेगी। तो बुयूतन सिफत मौसूफ बोल के छोड़ दीजिए। ला कौन सा है? ला ला और इलाहा। इकट्ठे बोलिए, कोई बात नहीं। ला नाफिया। नफी जिन्स है। जी। ठीक है। ला जी। नफील जिनसी है। ला नफी जिन्स का भी क्या होता है? मुब्तदा और खबर के दाखिल होकर इसका इराब देता है। तो ला इमादा हो जाएगा। ला इमादा क्या? ला का इसम हो जाएगा, इसको खबर चाहिए। लाम हर्फ जर और हा जमीर साबिततुन। मजरूर हो जाएगी। जब जमीर आ गई तो लौटाएंगे। जमीर बराए वाहिद मुअन्नस गायब जी जी जी। किसकी तरफ लौटेगी? साबिततुन जो किसकी फेल हम जमीर किस? मानेंगे। उसके उसका कोई सुतून नहीं है। किसका सुतून नहीं है? घर का। बयूत का। का। तो बुयूद की तरफ जमीर लौटेगी, इसको लौटाना जरूरी है। जब जमीर लौटेगी ट्रांसलेशन करने में, बोलने में बहुत आसानी होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ला इमाद ला, लाम हाथ पे जर, हा जमीर मजरूर, जार मजरूर से मुताल्लिक हुआ साबिततुन के, काइनतुन के। ठीक है, हो गया सब। जी जी। अब जार मजरूर अपने मुताल्लिक से मिलकर ला की खबर, सही है। ला लफी जिन्स अपने इस्म खबर से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया होकर मुद्दत के सिफत। सिफत। बई बुयूतन की सिफत हो गई। और अब दोनों को जोड़िए। सिफत। बुयूतन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर के मौसूफ अपने सिफत सिफत। जी। यरफाउ मफूल बिही बन। हो गया। मफूल बिही बन। अब जी। फेल अपने फाइल और मफऊल बिही से मिलकर के बोलिए मफूल सिफत। जुमला जुमले की खबर होकर अल-इल्मु मुब्तदा की खबर। अल इल्म मुब्तदा की खबर। अल इल्म मुब्तदा अपने खबर से मिलकर के जुमले इसमिया खबरिया हो गए। जुमला इसमिया खबरिया हो गया। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जुमला इसमिया खबरिया है, लेकिन देखिए कितना बड़ा है। ये तो एक लाइन भी नहीं, आधा लाइन भी नहीं है, और इसमें तो बहुत बड़ी जी। बड़ी भी चीजें आएंगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। तो एक चीज हमने सिर्फ यहाँ पे बताई है कि फेल के अंदर 6 चीजों को आपको कंसीडर करना है। कलम कॉपी कोई रफ लेकर के बैठें, इस तरह की चीजें आती रहेंगी नोट करने के लिए। और वीडियो तो अवेलेबल होगी ही, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखने से भी फायदा होगा, अलग जहन में बैठता है लिखने से जी। चीजें। तो ये हो गई। अच्छा। बाकी जो है टेक्स्ट है उसे पढ़ लेते हैं, जितना वक्त है उतना पढ़ लेते हैं। और एक जो है 50 मिनट की क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। हाँ, ये टेक्स्ट है जो आज कुछ हमने कुछ पढ़ा है,
اس کی پریکٹس کے لیے ہے. ایک بات دھیان رکھیں کہ جو چیز ہم قاعدے پڑھیں اس کی پریکٹس تو کریں گے ہی، فوکس اسی پر ہوگا، لیکن ایڈوانس لیول کے ہیں تو لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے. جتنی مرفوعات ہیں، جتنی منصوبات ہیں، جتنا ہو سکے تھوڑا بہت سب کا اجرا کرنا ہے، اس کو سمجھ کے چلنا ہے. تو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ مبتدا خبر، اور خبر کی شکل کیا ہوگی؟ تین: جملہ فعلیہ، یا جملہ اسمیہ، یا شبہ جملہ. اب دیکھیں کچھ پڑھ لیں یہاں پہ. المرء باصغريه، ریاض الادب یہ عنوان ہے اس کا. آپ کو ریاض کے معنی معلوم ہے، گارڈن. ٹرانسلیشن وغیرہ جو کریں گے وہ انگریزی میں اس کا تو کریں گے ہی کریں گے، آج وقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم ورڈ میننگ انگریزی میں ہی ہونا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ریاض کے معنی بتائیں فوراً فٹافٹ، ورڈ میننگ پہ چلیں. گارڈن کو بولتے ہیں، اور ادب ادب ایک لٹریچر. لٹریچر ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، وہ آداب ہوتا ہے. یہاں پہ ادب جو ہے گڈ مینر کے معنی میں ہے، ایتھکس کے معنی میں ہے، اچھے اخلاق جسے ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ماڈسٹ ہو تو جی ریاض الادب گارڈن آف ایتھکس یا گارڈن آف گڈ مینرس. تو المرء باصغريه، آدمی اپنے دو چھوٹی چیزوں سے ہے. اصغر کا تسنیہ اصغری، قلبه ولسانه. تو المرء ظاہر سی بات ہے جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور اصغریہ اس کی خبر ہو جائے گی قلبه ولسانه. یہ دو چیزیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ دو مطلب اس چھوٹی، کی ہاں علم ہاں، جو ہے. اس کی امیج جو ہے، اس کی پہچان جو ہے، دل اس کا کیسا ہے، زبان کیسی ہے، اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے. تو کیا بولیں گے؟ A person یا the person is known by his two smallest parts. کلیئر ہے؟ اب وہ جی پارٹ کیا ہے؟ قلبه his heart، ولسانه and بولیے آسان ہے his انسان. tongue. انسان. بس اتنا رہنے دیجیے، ایک جملہ ہو گیا یہ. اب جو ہم کچھ پڑھے ہیں اس کو کریں گے. سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ یہاں پر مبتدا کی خبر کس شکل میں ہے. جملہ ہے، شبہ جملہ ہے؟ جملہ ہے تو کون شبہ سا جملہ جملہ. ہے؟ شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ. شبہ جملہ کے ہم نے مثال میں کیا پڑھا تھا ابھی؟ کہ فوق شجرتی جو ظرف تھا، اور ایک اور جملہ تھا جو کہ جار مجرور تھا. تو یہاں پہ جار مجرور والی جی شکل ہے، بی جی اصغرئی. تو المرء مبتدا ہو جائے گا، با حرف جر، اصغرئی مضاف، ہی ضمیر مضاف. برائے واحد مذکر غائب راجع بجانب المرء مضاف الیہ. جب بھی ضمیر آئے گی وہ کہاں لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر کس چیز کی ہے، ان دو چیزوں کو یہاں پہ خیال رکھنا ہے. تو یہ دوسرے پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. پہلا تھا کہ فعل کے اندر ہمیں چھ چیزوں کو دیکھنا ہے، اور یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضمیر کے اندر دیکھنا ضمیر ہے. کس کی ضمیر طرف راجع. ضمیر کس کی ہے، برائے کس کے لیے ہے، اور راجے بجانب ادھر وہ لوٹ رہی ہے. یہ دو چیز ہر حال میں آپ کو کرنا پڑے گا. ہو گیا؟ تو اصغر مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ راجے بجانب المرء. ہو گیا؟ بولیے بولیے بولیے. المرء مبتدا بحرف جر اصغر مضاف، جی ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور. مجرور. اب جار مجرور سے مل کر متعلق تو ہے نہیں، المرء سے متعلق ہو نہیں سکتا، تو کس سے کریں گے؟ قائل قائنن سے. ہاں، يس. المرء قائنن یا المرء معروفن بھی کر سکتے ہیں. یہاں سیاق سے بات سمجھ میں آ رہی جی ہے. المرء معروفن پہچانا جاتا ہے، یعرف سے کر سکتے ہیں. تو معروفن جار مجرور اپنے کس سے مل کر کے متعلق، اور معروفن سے، اور معروفن اپنے متعلق سے مل کر کے المرء کی خبر، اور خبر. مبتدا خبر. خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. خبریہ. کلیئر ہے؟ ہو گیا. لیکن ایک بات دھیان رکھیں، جی یہاں پہ آ رہا قلبہ و لسانہ. یہ قلبہ و لسانہ کیا ہے؟ بدل. کس کس کا قلب؟ کس کے بارے میں بتایا؟ دو چھوٹی چیز کہا ہے، اور اس کے بدل. بعد قلب اور لسان کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا چیز ہے یہ؟ پھر بدل ہو سکتے ہیں. ہاں، بدل ہے. ٹھیک ہے. تو جب بدل ہے تو جی. اصغرئی میں ابھی ترکیب ہم پوری نہیں کریں گے. کس سے بدل ہے؟ مبدل میں. مبدل
असगरी है तो असगर असगर के मुजाफ, मुबदल आजम एक मुजाफ इले, मुजाफ मुजाफ इले से मिलकर भी मजरूर नहीं होगा, बल्कि अभी क्या होगा, मुबदल मिन्हू होगा। फिर कल्ब जी। मुजाफ, तमीर, और ज़मीर मुज़ाफ इलैह। करने में दो चीजें बताइए फौरन। बराए वाहिद मुजक्कर गायब, राजे बजानिब अलमरउ, असगर ठीक है। अलमर उस वक्त। और जी। जार मजरूर से मिल करके, जार मजरूर कहाँ गया, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिल करके, अ, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिल करके ये होगा मातूफ। गुड, अत मातूफ होगा, मातूफ अभी बदल नहीं मातूफ बनाएंगे, जैसे अलैह। कि वाव आ रहा है, मातूफ ठीक है। अलैह। और तो जब वाव जी। आ रहा है तो उसके बाद भी चाहिए, तो मातूफ अलई हो जाएगा। और लिसान मुजाफ जी। हाजन एक मुजाफ इलैह, चलिए मान लीजिए यहीं पर, तो लिसान मुजाफ अपने जी। मुजाफ इलैह से मिल करके आज मातूफ, वाव के बाद वाला मातूफ होगा जी। और वाव से और पहले वाला मातूफ अलई होगा, ठीक है। वाव के बाद वाले को जोड़ दिया है किससे, ये मातूफ मेरा मातूफ। इधर उधर भाग जी। जा रहा है, क्या करूँ। ये अभी आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब पकड़ इस पे बैठेगी तो इसी से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये जो है वाव से पहले वाला मातूफ अलई हो जाता है, उस पे अप किया जाता है और बाद वाला मातूफ होता है। तो मातूफ। अब लिसान मुजाफ हाजर में मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह से मिलकर के मातूफ। अब मातूफ मातूफ अलैह दोनों हो गया, मिल गया, तो अब जोड़िए जी। मातूफ अलैह अपने मातूफ मातूफ से मातूफ मिल करके बदल बदल बदल। होगा अब असगर। असगर ही मुबदल मिनहू अपने बदल से मिल करके मजरूर होगा। मजरूर। अब जार मजरूर से वहाँ मिलकर पे मुतल्लिक हो जर जाएगा वो युरफु या मारूफ मारूफन फिर से, खबर बन मारूफन ये अपने मुतल्लिक से मिल करके खबर, और मारूफ की अलमर और खबर। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबर यह हुआ। मैं चाहूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा जोड़ दूँ, और ऐसे ही हमने पढ़ा है। जब 3 लाइन हो जाती थी, बहुत ज्यादा हो जाता था, फिर वहां पे तोड़ दिया जाता था। ये सब जुड़ेगा। जी। और इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि विद इन अ सेकेंड आपका दिमाग क्लिक कर ले कि क्या वाकई हो रहा है, तभी आप एराब पढ़ सकते हैं। अब जैसे एक चीज ये भी है कि ये हमने आपको पढ़ाया, पूरा टेक्स्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, पढ़ लिया इसको तो हम पढ़ लेंगे खटाखट, दूसरी किताब दे दी जाए तो नहीं पढ़ पाते हैं। उसकी वजह यही है कि ये प्रैक्टिस हमें पूरी तरह से नहीं हुई है। अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी किताब पढ़ लेंगे। हम उर्दू पढ़ लेते हैं, कोई भी किताब दे दीजिए, तारीख की हो, ज्योग्राफिया की हो, अदब की हो, हिस्से की हो, रिवाया की, पढ़ते कि नहीं पढ़ लेते जो उर्दू जानते हैं। पेपर दे दीजिए, गलती होती नहीं होती है। लेकिन यही अरबी में नहीं हो पाता, इसलिए कि ये प्रैक्टिस हमारे नहीं होती है। जी। ठीक है, तो टाइम हो गया है, ये मुकम्मल करना था, लेकिन कल इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। कुछ पूछना हो आपको अच्छा इसमें तो पूछ लें, वरना क्लास वाइंड अप की जाए। सर ये दो चीजें जो आपने बोला कि बराए और राजे बेजान, बराए हाँ, में क्या बोलना है कि बराए के मतलब होता है किसके लिए है। आप कुछ भी अपनी जबान में बोल सकते हैं, जैसे कि असगर ही, असगर मुजाफ हा जमीर, और मुजाफ इलैह बनेगा, लेकिन जमीर आ गई तो दो चीज इसमें क्लियर करनी पड़ेगी कि किसके लिए है जमीर, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। बराए किस जिसके लिए होता है उसको बराए लगाते हैं। तो ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, तो बोलेंगे बराए वाहिद मुजक्कर गायब। देखिएगा जमीर बोलना की तहकीक हो गई, इसमें। जमीर की ओके तहकीक हो ओके गई। ठीक। अब किसकी तरफ लौट जी। रही है वो बता देंगे, राजे बजानिब अलमरउ यहाँ पर है जिसकी। ये चीजें जरूरी होती है, जमीर को लौटाने में बहुत ही घपला हो जाता है, समझ में नहीं आता। दो तीन जमीर अगर लगातार आ रही हैं, इस तरह से प्रैक्टिस रहेगी तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। जी, जी। और कुछ, किसी और को कुछ पूछना हो। बस सर ये होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास।